آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں فوری طور پر مردم شماری کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیا سروے اسی سال شروع ہو جائے گا۔ اجلاس کے دوران ہونے والے فیصلوں سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ 2017 کی مردم شماری میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ جب سوال اٹھائے جا رہے ہوں تو یہ ملکی یکجہتی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ مردم شماری پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتظار کے بجائے فوری اگلی مردم شماری کرائی گئی۔ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر نئی مردم شماری کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مردم شماری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مردم شماری کے حوالے سے بہترین طریقہ کار استعمال کرنا ہے۔ ڈسکا میں الیکشن ہارنے کے بعد وزیر اعظم نے ناکامی کی وجوہات پر مشتمل رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈسکا میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان انتخابی معرکہ ہوا، جس میں لیگی رہنما سیدہ نوشین افتخار نے علی اسد مہلی کو 10,000 سے زائد ووٹوں سے ہرا دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ڈسکا الیکشن میں شکست کی وجوہات جاننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ملک سے محبت بے مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلسل 10ویں ماہ بھی ترسیلات زر $2 ارب سے زائد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائی گئی۔ مارچ میں ترسیلات زر 43% اضافے سے $2 ارب 70 کروڑ رہی۔ ترسیلات زر میں 26% اضافے پر اوورسیز پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں۔ جرمنی کا خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار اور قربانیوں کا اعتراف، کہا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ برلن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے افغان امن کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہش مند ہے، جس کے لیے ہندوستان کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان معاملے سمیت دیگر امور پر پاکستان جرمنی کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ کورونا ویکسین کی فراہمی کے لیے جرمنی کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے تمام عہدے سے احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاست عزت اور برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کوئی ہم پر فیصلے مسلط نہ کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شو کاز نوٹس پر پیپلز پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگی جائے، جس کو استعفیٰ دینا ہے دے، لیکن کسی پارٹی کو ڈکٹیٹ نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کا استعفوں کا موقف آخری آپشن ہوگا۔ سینٹ الیکشن میں حصہ لے کر حکومت کا مقابلہ کیا۔ پنجاب میں سینٹ کی 5 نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا مجوزہ آرڈیننس ملک کی معاشی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ کشمیر کے حوالے سے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی کشمیر پر سمجھوتا نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ شو کاز پر پیپلز پارٹی کا رد عمل۔ مریم نواز نے معاملہ فضل الرحمان پر چھوڑ دیا، کہا کہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیگی نائب صدر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں۔ معاملہ مولانا فضل الرحمان کی دانشمندی اور قیادت پر چھوڑتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں متحد اور اپنے کاز پر کاربند ہیں۔ بلاول نے نوٹس پھاڑ کر اچھی حرکت نہیں کی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میری نظر میں بلاول کا عمل غیر مناسب تھا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ نون لیگ پی ڈی ایم کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا بے اصولی ہے، یہیں سے بات بگڑی۔ پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک جاری رکھے گی۔ معروف صحافی آئی رحمان 90 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا تھے۔ آئی رحمان 1930 میں بھارت میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کے دوران مختلف اشاعتی اداروں میں مدیر کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ کالم نگار بھی تھے۔ ان کو انسانی حقوق کے لیے خدمات پر کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مرحوم نے سوگواران میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔
कमिश्नर रावलपिंडी का रमजान सस्ता बाजार का दौरा, अशिया ज़रूरिया की हुकूमती निर्खों पर दस्तयाबी का जायजा लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह का इस मौके पर कहना था कि सब्सिडी पर दी जाने वाली अशिया ज़रूरिया के मयार या मिकदार में किसी भी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशिया की कीमत में कमी लाकर मयार को गिराने की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह ने हिदायत की कि बाजार में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सूबे में अमन अमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान रावलपिंडी के तरक्याती मनसूबों का जायजा भी लिया गया। मुलाकात में वफ़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी बराए ख़वातीन को यूनिवर्सिटी लेवल अपग्रेड करने पर भी दोनों रहनुमाओं में तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वक़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तफाक हुआ। इसके अलावा नालाली एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट पर तेज़ तरीन पेशरफ्त के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए नालाली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। नालाली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से ट्रैफिक के अज़दहाम में कमी आएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब काबिल कदर काविशें कर रही है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। डस का इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली का अपने एक बयान में कहना था कि डस का इलेक्शन में अल्लाह ने शानदार कामयाबी से नवाजा। आवाम को सलाम है जिन्होंने बहादुरी के साथ अपने हक़ राय दही का दिफा किया। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार जाना आवाम की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PDM की सूरत हाल मेरे पास तुम हो ड्रामे जैसी है। दानिश की हालत ऐसी नहीं थी जैसी मरियम सफ्तर की है। वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का सेंट्रल जेल अडयाला में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि बीच चौराहे हंडिया फूट गई है। बिलावल जरदारी इसका शो कॉज नोटिस फाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को 1250 अरब का मकरूज छोड़कर गए। इन हालात में काम शुरू किया, इसके बाद कोरोना आ गया। करोड़ों रुपए के फंड्स बकाया जात थे जो वज़ीर आला पंजाब ने क्लियर करवाए। इमरान खान के विजन का मैं सिपाही हूँ, मेरे साथ जो ज्यादती हुई इसको बर्दाश्त किया, सबको करना चाहिए। कहा 6 से 7 नई जेलें बनाने जा रहे हैं। कोशिश ये होती है कि कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इस्लामाबाद में ज़िले इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, तजावुज़ात मिसमार कर दी गई। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बरी इमाम के इलाके, मुस्लिम कॉलोनी, डिप्लोमेट इनकलेव और कायद आज़म यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द तजावुज़ात मिसमार कर दी गई हैं। CDA वफाकी पुलिस ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मिसबार की जाने वाली तजावुज़ात में घर और मवेशी बाड़े शामिल हैं। AC सेक्रेटेरिएट की तरफ से CDA हुकाम को मुआवनत फराहम की गई। सस्ता रमज़ान बाजार लाहौर के नाक़िस इंतज़ामात ने ज़िले इंतज़ामिया की कलई खोल दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावी रोड करीम पार्क आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला सस्ता रमज़ान बाजार हल्की तेज हवा को बर्दाश्त ना कर सका। रमज़ान बाजार के टेंट जमीन बोझ हो गए। फल, सब्जियां और दीगर सामान टेंटों के नीचे दब गया। सस्ता रमज़ान बाजार की इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। करीम पार्क गोल ग्राउंड में लगने वाला सस्ता रमज़ान बाजार, इसके नाकिस इंतजामात जिम्मेदारान के लिए सवालिया निशान बन गया। सस्ता रमज़ान बाजार आवाम के लिए किसी मजाक से कम नहीं। सस्ता रमज़ान बाजार के इखराजात ज्यादा जबकि आवाम को फायदा कम मिलता है। क्या सस्ता रमज़ान बाजार आवाम को सहूलत दे पाएगा? इस हवाले से शहरी नाकिस इंतजामात के बारे में क्या कहते हैं। किसी नूं कोई इहदे विच फजीलटी नहीं है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि इहदे विच सस्ती चीज़ लभदी है। सारियां चीज़ां सस्तियां जिहड़ियां ने बाहर विकदियां ने, ये सारे जिन्ने भी ने सारे पक्खे ला के बैठे ने। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिहड़ा इत्थे फजीलटी मिले उन्होंने किसी नूं। चलो चीज़ दलील करके लैना च ते जिहड़ी एक वड्डे छंभने उन्हां दे घरां थैले बोड़ियां ते बोड़ियां पहुंच जांदियां, किसी नूं पता ही नहीं गा। बाहर तो बाहर से की है किलो चीनी लेना ही लोग बुढ़े ज़ईफ बंदे इत्थे आके दलील होते देनी की किलो। सस्ता रमज़ान बाजार आवाम को रिलीफ दे सकेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कोरोना वायरस फैलने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तौसीह कर दी है।
रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी, सिर्फ अहम नौइयत के केसेस सुने जाएंगे। जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौइयत के केसेस पर समाअत होगी। अहम नौइयत के मुकदमात चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। कोरोना के कातिल व जारी महलिक जानलेवा वायरस ने 58 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,501 जा पहुंची है, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,25,602 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,584 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,07,79,474 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,514 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,34,835 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आज इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हमें कानून की पासदारी करते हुए आवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनानी है। आज इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का पासिंग आउट की तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि शहरियों को इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुखातिब होकर कहा कि आप महकमे पुलिस का नाम रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सच्चे दिल के साथ आप ये अहद करें कि इंसानी खिदमत को अपना शार बनाएंगे। सच्चे दिल के साथ आज ये अहद करें कि इंसानी खिदमत को अपना शार बनाएंगे। थाना नून पुलिस इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मलिक सुहेल जमान, हसनैन खुर्शीद, ख्वाजा मोहम्मद अमीन शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की कीमती घड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, कीमती प्लाटों की फाइलें बरामद हुई हैं। मुलजिमान गैर मुल्की पाकिस्तानी शहरियों के साथ ताल्लुकात बनाते थे और मौका देखते ही घर को खाली पाकर लूट लेते थे। DIG ऑपरेशनल अफजाल अहमद कुसर और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर ने पुलिस टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात का ऐलान किया। ईरान की जौहरी तंसीब पर इसराइल का साइबर हमला, तेहरान का बदला लेने का ऐलान। कहा कि मोसाद का हमला एटमी दहशतगर्दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के हमले में ईरानी तंसीब को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तनज़ुर में बिजली मुनक़ता हो गई थी, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरान ने आलमी पाबंदियों के खात्मे में कामयाबी हासिल की, जिसका इसराइल बदला लेना चाहता है। याद रहे कि गुज़श्ता साल जुलाई में भी तनज़ुर की जौहरी तंसीब में धमाका हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने इसराइल पर आयद की थी। भारतीय किसानों ने गंदम की कटाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब धरने भी जारी हैं। भारतीय पंजाब के जिला अमृतसर में किसानों ने गंदम की फसल पकने पर खुशी मनाई। काश्तकारों का कहना था कि मोदी सरकार ने काले कानून बनाकर उनके साथियों को धरनों पर मजबूर कर रखा है। इस मौके पर ख्वातीन का कहना था कि वह किसानों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। राजनपुर में एहसास का फादर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट आसिफ ने अपनी ज़ेर निगरानी रकूम की वसूली का अमल जारी करा दिया। एहसास का फादर सेंटर का इफ्तिताह टेक्नोलॉजी कॉलेज में किया गया, जहां पर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए रकूम की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट महार आसिफ ने कहा कि रिटेलर हजरात रकूम की अदायगी में किसी किस्म की कोताही न बरतें। सुस्ती बरतने और कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया की मरकजी ईदगाह नशेइयों के निर्गे में चारों तरफ गंदगी के ढेर ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका सरापा एहतजाज, हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर शर्किया से हमारे नुमाइंदे नसीर अहमद सेठार के मुताबिक मरकजी ईदगाह महमूद पार्क में नशेइयों ने डेरे डाल लिए हैं। हर तरफ ताफुन से बदबू फैल चुकी है। जनाजा पढ़ने के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और डेंगू बुखार फैलने लगा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर बहावलपुर से महमूद पार्क में मौजूद वजू खाना और पार्क को साफ सुथरा बनाने का मुतालबा कर दिया। जहलम में शहीदों गाजियों की माहें और बीवियां पेंशन की खातिर जलील व ख्वार होने लगी। 3 माह से पेंशनर्स को पेंशन ना मिल सकी। तहसील दीना के चौक पर पेंशन ना मिलने की वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। बुजुर्गों और बेवा माओं का कहना है कि माह रमज़ान सर पे है, पेंशन ना मिलने की वजह से हम घर का सामान खरीदने से कासिर हैं। घर वाले फाका कुशी पर मजबूर हैं। हमें सुबह 7 बजे बुला लेते हैं,
दिन 12 बजे रकम न आने का कहकर वापस भेज देते हैं, आला हुकाम नोटिस लें। करोड़ लाल एसन के नवाह इलाके फतेहपुर में महकमे खुराक और महकमे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। गंदम से भरे 2 ट्रक भी पकड़ लिए गए हैं। महकमे खुराक की जानिब से MM रोड पर पुलिस चेक पोस्ट के करीब कार्रवाई की गई है। महकमे खुराक की जानिब से तहवील में लिए गए ट्रकों से 70 टन गंदम बरामद की गई है। फूड इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार का कहना था कि गंदम जिला लिया से रावलपिंडी स्मगलिंग की जा रही थी। स्मगलिंग की जाने वाली गंदम को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब भर की तरह राजनपुर में भी सस्ता रमजान बाजार का आगाज कर दिया गया है। लोगों को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी जारी है। मुख्तलिफ स्टॉल्स में आटा चीनी मुनासिब निरखों पर मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राना आसिफ इकबाल ने सस्ता रमजान बाजार का अचानक दौरा किया और रमजान बाजार में कायम तमाम स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि लोगों को सस्ता रमजान बाजार में सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए रमजान बाजार में शहरी मुस्तफीद होंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के नए शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के इवेंट की तारीखों की तस्दीक कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने भी इवेंट की मंजूरी दे दी है। 2 साल बाद होने वाले इवेंट का 6वां एडिशन बांग्लादेश के ढाका के मौलाना भाषानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। इवेंट में जापान, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया और मेजबान बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। याद रहे कि गुज़श्ता साल कोरोना के बायस टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया था। JNN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ।